voice is coming or not? हाँ जी. Are you able to listen my voice? Yes, you are audible, sir. Yes, sir. Okay, no problem. Preeti ma'am, now please go ahead. Good morning, everyone. Today, on the fourth day of invited lecture series, third, by SS Saint Girls BVPG College, SS College Shahjahanpur, and SRBS Society for Research in Biological Sciences, I welcome you all. And today we are going to listen again an eminent scientist as well as professor at Chandrasekhar Azad Agriculture University, Kanpur. Dr. Sameer Kumar Vishwas sir is professor of plant pathology. Sir, you did your MSc and PhD from IARI New Delhi. Sir, you are teaching UG and PG classes and guided several MSc and PhD theses as major supervisor. Sir, you are awarded with Young Scientist Award by Upkar Lucknow, Indian Phytopathological Society, New Delhi, Indian Society of Mycology and Plant Pathology. Sir, you are awarded with FPPS Meritorious Scientist Award and Outstanding Achievement Award for 2 successive years, 2017 and 2018. Sir, you were awarded with Award of Excellence in 2018. Sir, you published 130 research papers and 3 books. In 2019, you got Outstanding Scientist Award in the second International Scientist Award by VD Good at Vishakhapatnam. Sir, you are a good sportsman also. You are having 59 certificates for winning different games and sports. Sir, you also visited Ohio State University, Columbia, USA under Teaching Learning Excellence Program. Besides this there is a very long list of your achievements, but we have a limited time, so I selected some of them. I welcome you, sir, for your presentation. Welcome, sir. Thank you, madam. Thank you for that. दीपाली त्रिपाठी, प्लीज कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर मत करिए, प्लीज आप लोग इसकी स्क्रीन शेयर नहीं करिए। और सर की जो स्क्रीन होगी उसको पिन कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग का डिस्टरबेंस नहीं होगा बीच में। यस सर, आप शुरू करिए सर। Okay. I'm looking screen share. Why it is? Yes sir. Adarsh sir, please help sir. आदर्श पांडे सर, प्लीज हेल्प। आप स्क्रीन पे माउस को ले जाइए सर, तो देखिए राइट साइड में नीचे प्रेजेंट नाउ लिख के आएगा। स्क्रीन का है, स्क्रीन पे सर अपना माउस ले जाइए तो नीचे राइट कॉर्नर पे नीचे प्रेजेंट नाउ लिख के आएगा। ओके राइट। देन प्रेजेंट नाउ में आप आपने अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया सर? हाँ, प्रेजेंटेशन ओपन है। हाँ, तो सर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए सर। जी, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रहा है आपका। ओके। सर आपका प्रेजेंटेशन सर नो इट इज नॉट लुकिंग। आपका प्रेजेंटेशन सर बिल्कुल ऊपर राइट कॉर्नर पे देखिए सर, जहाँ पे लिख रहा है कि प्रेजेंटेशन। ओके। हाँ, इस पर क्लिक करिए सर। अब इसको सर हटा दीजिए, दोबारा से करिए सर। स्टॉप शेयरिंग करके सर इसको दोबारा से करिए। दोबारा से करिए सर। स्क्रीन पे जाएंगे सर प्रेजेंट नाउ में।
सर आपने प्रेजेंटेशन ओपन कर रखा है अपना? हाँ सर, ओके। प्रेजेंटेशन हाँ, ओपन है। अब दिखाई दे रहा है सर। यू स्टार्ट प्लीज। It's coming, no? Yes, sir. But I am not able to see my. सर आप नीचे जहां पर आपका प्रेजेंटेशन है, जो पावर पॉइंट है, उस पर क्लिक करिए, नीचे बिल्कुल बार पे, नीचे बार पे। हाँ, आप दिख रहा है सर? आपको दिखाई दिया? आप? हाँ, मुझे तो दिखाई दे रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes. आप, मैं देख पा रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा है सर, प्लीज। वो एक्चुअली सर, आप लोग देख पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay, 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 okay. Shall I start? Yes, sir. Okay. Thank you, madam, for your nice introduction. And I am grateful to organizer Dr. Preeti Singh and co for giving me an opportunity to share my view before faculty and student. The topic which I am going to deliver, mushroom and its importance during COVID-19. Everybody we know we are suffering a global health crisis. हम सभी को पता है कि हम लोग एक कठिन परिस्थिति में गुजार रहा है, जो है ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। ऐसे कोई चीज है जो आदमी को मार रहा है, स्प्रेडिंग ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस and disturbing people's lives. But it is more than global health crisis. It is human crisis, economic crisis, and social crisis. A coronavirus disease, COVID-19, recognized as a pandemic disease by World Health Organization. This COVID-19 has adverse effect on social life. देखिए, सोशल लाइफ आज का डेट में हम सभी को पता है कि 2 गज का दूरी, मतलब यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस टू ईच अदर। हम लोग रोड में घूम रहे हैं, हमारा जो फेस है वो फेस कवर करके, दैट इज मास्क लगा के। आज का डेट में हम लोग एक दूसरा का घर में आना जाना बंद है। तो ये जो इफेक्ट है ये ड्यू टू कोविड-19, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, आज मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ, आज ये लेक्चर आप हमारा फेस टू फेस कांटेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये कोरोना का चक्कर में हम लोग वेबसाइट का माध्यम से हम लोग हमारा व्यू शेयर कर रहे हैं। आज का डेट में जितना स्कूल कॉलेज है सभी बंद पड़ा है, लेकिन एजुकेशन बंद नहीं हो सकता, इसको कंटिन्यू रखना है। इसी के लिए हम लोग जो लाइव क्लासेस शुरू किया, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहा, लेकिन हम लोग भूलते जा रहा हमारा जो एजुकेशन टीचिंग का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, चॉक डस्टर ब्लैक बोर्ड, लेकिन इसमें हम लोग भूलते जा रहा। लेकिन हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, हमारा ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हो रहा। आप एवरी डे टीवी का न्यूज में आप देख रहा है, रोज मोर देन 50,000 पॉपुलेशन आर अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19। इसका इफेक्ट हमारा एनवायरनमेंट का ऊपर भी है, हमारा इसका इफेक्ट इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा से है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इतना डाउन हुआ 3.1%, जो आज तक लोएस्ट है। हमारा आप देखेंगे हमारा जो 21 डेज का जो लॉकडाउन पीरियड हुआ था, वहाँ फर्स्ट 21 डेज का लॉकडाउन पीरियड में हमारा इंडिया का इकोनॉमी एवरी डे 32,000 करोड़ रुपीज लॉस हुआ। जस्ट इमेजिन, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का बात करें, हम लोग देखेंगे 6.7 to 26% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ एक्स्ट्रा। आप सरप्राइज हो जाएंगे, हमारा इस लॉकडाउन में
कम से कम 14 करोड़ पीपल वो अपना जॉब लेस हुआ। बहुत सारा आदमी को सैलरी भी काट दिया है। लेकिन ये है कोविड-19, लेकिन इससे हम लोग दमेंगे नहीं, हम लोग इसको ओवरकम करना है, इसको हम लोग खत्म करके हम लोग जो भी परेशानी है आगे बढ़ना है, हमारा सोच को आगे ले जाना है। इसी सोच में एक है मशरूम एंड इट मशरूम फार्मिंग। क्यों? वाई मशरूम फार्मिंग? मशरूम फॉर फूड सिक्योरिटी। आज का डेट में फूड जरूरत है, हम डिटेल्स में बाद में आ रहा हूं। मशरूम फॉर न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस खाना चाहिए। आज का डेट में मेडिसिनल वैल्यू, हमारा बॉडी को इम्यूनिटी देने के लिए हमारा मेडिसिन जो मशरूम से मैं ले सकता है। हमारा इनकम चाहिए, इतना अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इस अनएम्प्लॉयमेंट को रोजगार देने के लिए एक इनकम का रास्ता होना चाहिए। ये जो फूड सिक्योरिटी, फूड न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी डेवलपमेंट एंड इनकम जनरेशन, ये रास्ता हमारा मशरूम एंड मशरूम फार्मिंग से दिखाई देता है। लेकिन डिटेल्स जाने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर, जहाँ यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट है, मशरूम है क्या? मशरूम है प्लांट ऑफ इमोर्टलिटी। देखिए, ये हमारा बात नहीं है, ये 4600 ईयर्स एगो इजिप्शियन का एक स्टेटमेंट है। मशरूम प्लांट ऑफ इमोर्टलिटी। इमोर्टलिटी क्यों है? ये कभी मरेगा नहीं। क्यों? ये सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट मतलब जो सड़ा गला जो भी डेड मटेरियल्स है उसको ऊपर वो ग्रो करेगा। लेकिन डेड मटेरियल जब तक मिलेगा, मशरूम की फंजाई उसको ग्रोथ कंटिन्यूटी रहेगा। तो इसीलिए बोल रहा मशरूम इमोर्टलिटी। ये जो डेलिशियस फ्लेवर ऑफ द मशरूम एरोस क्यूरियोसिटी अमंग इजिप्शियन। मशरूम इजिप्शियन का अंदर मशरूम का इतना फ्लेवर था जो फराओज जो उस टाइम 4600 ईयर्स एगो, फराओज जो रूलर ऑफ इजिप्ट का जो राजा था, वो एक ऑफिशियल ऑर्डर किया था जो मशरूम इज द फूड ऑफ रॉयलिटी, नो कम्युनरी वेल को टच दे। मतलब मशरूम राजा का खाना है, कोई आम आदमी इसको टच नहीं कर सकता। देखिए इतना बड़ा बात है। ये इजिप्शियन उसको राजा का एक ऑफिशियल ऑर्डर का डिफाइन कर रहा है। इससे हमारा दो चीज क्लियर हो रहा है। एक है मशरूम का इम्पोर्टेंस, और एक हो रहा आप जितना प्रोडक्शन कर रहा, अगर सेल्फिश का नजर से देखेंगे, जे आप जितना मशरूम प्रोडक्शन कर रहा राजा का घर में पहुंचा दीजिए, यही मीनिंग हो रहा। सिर्फ यही नहीं है, हमारा वर्ल्ड में सेवरल टाइम में डिफरेंट कंट्री में जितना सिविलाइजेशन हुआ, हर सिविलाइजेशन में मशरूम एज ए रिचुअल का नाम से परिचित है। बहुत पीपल, बहुत आदमी मशरूम को नाम दिया था सुपर। मशरूम में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, मशरूम है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। जैसे बच्चा लोग टीवी में देखता है सुपरमैन, सुपरमैन के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन जंप फ्रॉम कानपुर टू लखनऊ, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम आदमी का अंदर मशरूम का इतना बिलीव था, आपका बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर खराब हो गया, फंक्शनल नहीं है कि खराब काम कर रहा, उस टाइम आप मशरूम खाएंगे तो आप अपना बॉडी को जो ऑर्गन है वो रिकवरी हो सकता है। ये है एक सिंपल वे में मशरूम। तो मशरूम है क्या? मशरूम जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया, माइकेस मीन्स मशरूम। एक फ्लैशी स्पोर बियरिंग fruiting body of a fungus typically produced above ground part of the soil। मतलब सिंपल वे में ये एक फंजाई है, एक फंजाई। जैसे हमारा मैंगो का पेड़ है, मैंगो का लीफ हम लोग नहीं ले रहा, हम लोग उसका मैंगो का फ्रूट्स ले रहा। ऐसे ही मशरूम फंगस का एक फ्रूटिंग बॉडी है, जो फ्रूटिंग बॉडी हम लोग खाने के लिए यूज कर रहा है। तो कैसे फॉर्म हो रहा? देखिए, ये है मशरूम का स्पोर,
राउंड शेप, ये जिस टाइम जर्मिनेट होता है ये थ्रेड लाइक स्पोर माइसेलियम बनता है। ये माइसेलियम हैप्लॉइड होता है, दो माइसेलियम फिर प्लाज्मोगामी होता है, दो जोड़ जाता है, प्लाज्मोगामी होता है। जिस टाइम जोड़ जाता है एक सेल में दो न्यूक्लियस होता है, जहां दो न्यूक्लियस सेप्टा भी फॉर्म हो, दो न्यूक्लियस हो, जहां जो सेल से डाइकैरियोटिक कंडीशन है वहां से ये फ्रूटिंग बॉडी बनता है। आप लोग ये भी देखेंगे जो कुछ दिन मशरूम रखने के बाद ये ब्लैक कलर हो जाता है। ये ब्लैक कलर ड्यू टू स्पोरिडी बेसिडिया और एक स्पोर है। ये इसमें दो न्यूक्लियस होता है, दो न्यूक्लियस फिर कैरियोगामी होता है। ये देखिए कैरियोगामी हुआ, कैरियोगामी मतलब एक डिप्लॉयड हो, डिप्लॉयड होने के बाद इसको मियोसिस हुआ, मियोसिस होके ये ओरिजिनल पोजीशन में स्पोर प्रोड्यूस कर दे। ये एक सिंपल लाइफ साइकिल मशरूम का है, मशरूम कैसे फॉर्म हुआ। तो मशरूम अट्रैक्टेड अटेंशन फ्रॉम एंशिएंट टाइम, बहुत पहले से, आज नहीं बहुत पहले से मशरूम एज ए फूड और मेडिसिन का नाम से बहुत पॉपुलर था। रोमान आदमी का था, रोमान आदमी मशरूम को इतना इम्पोर्टेंस दिया जे अपना शहर एक सिटी का नाम दिया था माइसेनिया। जैसे हम लोग क्या करता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी स्ट्रीट कि फलाना रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रीट, स्वामी विवेकानंद स्ट्रीट, ये जो एक स्ट्रीट एक बहुत अच्छा आदमी का, एक अच्छा महापुरुष का नाम से लेके हम लोग उसको एक माइंड में रखने के लिए रखता है। ऐसे ही रोमन पीपल मशरूम को फॉरएवर के लिए एक शहर का नाम दिया था माइसेनियन, जो मशरूम से लिया गया था। तो ये है कॉमनली कल्टिवेटेड मशरूम। इसमें व्हाइट बटन मशरूम, वेस्टर मशरूम, सीटेक मशरूम, रेजी मशरूम, मिल्की मशरूम, these are the most popular mushroom cultivated India as well as all over the world, throughout the India में कल्टिवेशन हो रहा है। अभी आ रहा हमारा मशरूम वाई क्यों जरूरत है। मैं ही बताया था मशरूम फॉर फूड सिक्योरिटी। देखिए आज का डेट में आदमी को इनकम बंद हो गया, खाना पीना बंद है, रोजगार नहीं है, लेकिन फूड हमारा पेट तो बंद नहीं हो सकता, इसके लिए खाना चाहिए। इसीलिए एक फोटोग्राफ आप देख रहा है, ये हमारा जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉग, इसका एक स्टेटमेंट है, फूड इज द मोरल राइट ऑफ वन हु आर बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड। मतलब हमारा दुनिया में जो भी आदमी जन्म लिया उसको फूड प्रोवाइड करना एक हमारा सभी का नैतिक कर्तव्य है। यार ये नैतिक कर्तव्य किसका है? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए है। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए बहुत सारा ड्रॉबैक है, उसका भी दो हाथ बाधा है। एक है मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारा इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.64%। अगर इसी ग्रोथ रेट से ये पॉपुलेशन बढ़ते जाए, देखिए 2025 ज्यादा दिन नहीं है, ये हमारा पॉपुलेशन होगा 1412 मिलियन। अगर 2030 में ये होगा 1.475, दिस इज नियर अबाउट टू 1.48 बिलियन। जस्ट इमेजिन, तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को अगर खाना देना है, हमारा फूड प्रोडक्शन होना चाहिए 355 मिलियन टन। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा प्रोडक्शन। आज का डेट में मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है? 265 मिलियन टन, वो भी 2012-13 में है। मतलब हम लोग कम से कम 100 मिलियन टन पीछे चल रहा। और अगर हम लोग को टारगेट में पहुंचाना है तो हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है वो 4% आपको बढ़ाना है। लेकिन बताना जितना आसान है उतना ही डिफिकल्ट है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए और एक ड्रॉबैक क्या है? अवेलेबल कल्टिवेटेड लैंड। देखिए इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 328 मिलियन हेक्टेयर। हमारा एक आदमी का अवेलेबल लैंड कितना है? लेस देन 0.5 हेक्टेयर। अगर ऑस्ट्रेलिया का बात करें क्या है? मोर देन 5 हेक्टेयर। मतलब हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहा? हम लोग कोई स्टैंड ही नहीं कर रहा। और भी क्या है? और भी देखेंगे पूरा अर्बनाइजेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, अवेलेबल लैंड
कम होते जा रहा है। आप हमारा कानपुर का एक पिक्चर देखिए, हमारा जो कल्याणपुर टू बिठूर का जो रास्ता है, वहाँ जितना मल्टी स्टोरेज फ्लैट बना है, कहाँ बना है? मस्ट फर्टाइल लैंड में बना है। तो क्या है, वो मेन कल्टिवेटेड एरिया है। तो कल्टिवेटेड एरिया हम लोग फ्लैट बना रहा, तो हमारा अवेलेबल लैंड और भी कम होते जा रहा। तो इस कंडीशन में हमारा अगर मिलियंस ऑफ पीपल को, हमारा देश का मिलियन ऑफ आदमी को खाना देने के लिए बहुत हम लोग प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है। प्रोडक्शन मतलब टोटल एरिया, टोटल प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी मतलब पर हेक्टेयर का बेसिस में। तो एज ए फूड प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन का बात करें तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। देखिए कंट्रीब्यूशन क्या है, हम लोग 1950 में जिस टाइम हम लोग फ्रीडम स्वाधीनता लाभ किया था, उस टाइम हमारा प्रोडक्शन था ओनली 51 मिलियन टन। आज कितना है? 265 मिलियन टन। कितना गुना हम लोग डेवलप कर चुका है। लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं है। देखिए ये और एक फिगर दिखा रहा, 2009-10 to 16 में हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का एक फिगर। ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है? हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन एक स्टैग्नेशन फेज में है, मतलब इससे हम लोग बढ़ा नहीं पा रहा। अगर बढ़ा नहीं पाएंगे तो हम लोग को वो जो टारगेट है 355 बिलियन टन हम लोग पहुंच नहीं सकता। प्रोडक्टिविटी क्या बात करें, एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी हमारा इंडियन में बहुत ही कम है। अगर वर्ल्ड का एवरेज देखे, हम लोग स्टैंड कर रहे 2.52 मिलियन टन, और देखिए यूएस में 5.85 मेट्रिक टन पर हेक्टर। तो हम लोग कहाँ स्टैंड? वर्ल्ड का एवरेज क्या है? 3.36। मतलब हम लोग कोई भी स्टैंड नहीं कर रहा। इस कंडीशन में हमारा प्रोडक्शन बढ़ना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना है। ऐसे नहीं है मार काट के हम लोग प्रोडक्शन करें। हम लोग इको फ्रेंडली, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो सॉइल है, उसको डिस्ट्रॉय ना करें, उसको सस्टेनेबल बना के। इस कंडीशन में मशरूम ऐसे एक खेती है जो आपको एक आपका इंडिया का जो फूड बास्केट है, एक फूड बास्केट में गुड अमाउंट आपको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? मशरूम शॉर्ट टर्न अराउंड। देखिए आज मशरूम कल्टीवेशन शुरू करेंगे, 25 दिन में आपको हार्वेस्टिंग हो जाएगा। मतलब विद इन 1 मंथ आप जो क्रॉप ग्रो किया था उसको हार्वेस्टिंग कर रहा है। इतना शॉर्ट टाइम में कोई भी एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर भी, कोई भी क्रॉप हार्वेस्टेड नहीं हो सकता। इसीलिए मशरूम शॉर्ट टर्म के लिए आपको शॉर्ट रिटर्न दे रहा, शॉर्ट फूड प्रोडक्शन दे रहा। तो इसीलिए मशरूम एक बहुत इम्पोर्टेंट है ये कोविड-19 के लिए, ये ड्यूरिंग एंड आफ्टर, आज हो और आफ्टर कोविड भी इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड आ रहा न्यूट्रिशियस फूड। देखिए अभी कोविड-19 में डॉक्टर सभी को एक ही बात है, आप आपका बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाए। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए? इम्यूनिटी उसी टाइम बढ़ सकते हैं अगर आप न्यूट्रिशियस फूड लेंगे। तो अगर न्यूट्रिशियस फूड का कंसीडर करें, मशरूम क्लासिफाइड एज वेजिटेबल्स इन द फूड वर्ल्ड, मतलब एक बहुत अच्छा वेजिटेबल्स है वर्ल्ड फूड बास्केट में। बट दे टिपिकली नाइदर वेजिटेबल नॉर प्लांट, ये प्लांट भी नहीं है, ये वेजिटेबल्स नहीं है, दे आर सेपरेट किंगडम फंजाई। बट ये एक इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल्स which provide several important nutrients। ये बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ये वेजिटेबल हो और ना हो, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। तो इसीलिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो रोम में वर्ल्ड फूड का जो रिकॉग्नाइज करता है, वो उसका एक स्टेटमेंट है, मशरूम फूड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मतलब मेल न्यूट्रिशन है, मशरूम खाने से आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। मतलब मशरूम खाने से आप कोविड-19 का अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं, वो आज हो और आफ्टर हो। अभी एक नज़र थोड़ा मेल न्यूट्रिशन का बात करें। देखिए पिंक कलर सबसे ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन इफेक्टेड एरिया है,
और हमारा एशियन कंट्री में है 35.8%, बहुत ही ज़्यादा है। और एक स्टेटमेंट है, हमारा वर्ल्ड में 868 मिलियन पीपल्स आर अफेक्टेड ड्यू टू malnutrition, इतना पॉपुलेशन, और 3 मिलियन यूथ लॉस देयर लाइफ इन एवरी ईयर, मतलब एक साल में 3 मिलियन पीपल डेथ हो रहा ड्यू टू malnutrition। तो मेल न्यूट्रिशन के ध्यान देने का हमारा जरूरत है। देखिए एक स्टेटमेंट है रिसेंटली, जो नोबेल लिटरेट अभिजीत बंदोपाध्याय का स्टेटमेंट है, जो रिसेंटली हमारा इंडिया से नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में। देश का फर्स्ट लाइन देखिए, देश का हर दूसरा बच्चा और माने मेल न्यूट्रिशन का सफर है। एकदम फर्स्ट लाइन में देखेंगे, छोटा छोटा लाइन में लिखा है। तो एक नोबेल लिटरेट का माने अभिजीत बंदोपाध्याय का एक स्टेटमेंट में देखिए, मेल न्यूट्रिशन हमारा इंडिया के लिए कितना सफरार है। ये देखिए एक हमारा कानपुर सिटी का स्टेटमेंट, जिला में 4614 बच्चा मेल न्यूट्रिशन का सफरार है। तो ये मेल न्यूट्रिशन अगर दूर करना है तो मशरूम जैसे न्यूट्रिशियस फूड है उसको खाना चाहिए। क्या न्यूट्रिशन है हम लोग देख लेते हैं। देखो, मशरूम नोन एज व्हाइट वेजिटेबल्स और बोनलेस वेजिटेरियन मीट, मतलब इसमें कोई हड्डी नहीं है। मीट क्यों बता रहा, मीट अभी इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, इसीलिए इसको मीट में जैसे बहुत सारा प्रोटीन है, ये प्रोटीन मशरूम में इक्वल अमाउंट है, इसीलिए इसको बोनलेस वेजिटेरियन मीट का साथ कंपेयर किया। और एक बता रहा, फेयर सप्लीमेंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। देखिए, जो हम लोग वेजिटेरियन पीपल है उसको प्रोटीन सोर्स क्या है, पल्सेस। पल्सेस में कितना प्रोटीन है, वही 24-25% मैक्सिमम आपको दिखाई देता है। एक लेंटिल जो मसूर का दाल है और एक सोयाबीन, लेकिन इतना जो प्रोटीन है ये प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है। मतलब पल्सेस और सोयाबीन का जो प्रोटीन है इजीली हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मशरूम का जो प्रोटीन है ये प्रोटीन इजीली हमारा बॉडी डाइजेस्ट कर सकता है और इजीली हमारा बॉडी कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए बोल रहा गुड सप्लीमेंट ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। इसमें क्या है, देखिए, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, 3 to 7% है सॉल्युबल प्रोटीन और 20 to 30% है क्रूड प्रोटीन। इतना प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन इजीली डाइजेस्टेबल है, जैसे हमारा बॉडी इजीली डाइजेस्ट करके यूज कर सकता है। और ये प्रोटीन ही चाहिए आपको बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मशरूम में कम है, 50 से 65 ड्राई वेट बेसिस। प्लस पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ है फ्री शुगर। जो शुगर पेशेंट है, जो डायबिटीज पेशेंट है, जो डायबिटीज पेशेंट के लिए फ्री शुगर चाहिए, जो मैनिटल लेता है, मशरूम में बहुत अच्छा है। 80% मैनिटल है, मतलब 11% फ्री शुगर है, 11% फ्री शुगर में 80% ही मैनिटल है। तो इसीलिए ये कोई भी डायबिटीज पर्सन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये इजीली ही कैन इंटेक। फैट, देखिए हम लोग जो फैटी है उसको बहुत सारा खाना माना है, वो बहुत सारा चीज ऐसे खा नहीं सकता, लेकिन मशरूम ऐसे एक चीज है इसीलिए कोई बैरियर नहीं है, एवरीबॉडी कैन टेक। क्यों, इसमें बहुत फैट कम है, लो फैट है। एक ही फैट है लिनोलेनिक एसिड, जो एसेंशियल फैटी एसिड में आता है। लिनोलेनिक एसिड का बहुत सारा फंक्शन है, ये हमारा बॉडी में जो फ्री रेडिकल, मेटाबॉलिज्म में फ्री रेडिकल डेवलप्ड होता है, ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हम लोग जो भयंकर बीमारी, जो कैंसर रिलेटेड जो बीमारी है, इससे हम लोग बच सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आ रहा विटामिन। मशरूम है एक फुल पैकेज ऑफ विटामिन सोर्स। देखिए इसमें विटामिन डी है, जो हमारा विटामिन सोर्स का डी है हम लोग सनशाइन से लेता है, लेकिन बहुत रेयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये विटामिन डी है, लेकिन वो हमारा बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकता। लेकिन मशरूम में जो विटामिन डी है हमारा बॉडी इजीली इंटेक कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है।
मशरूम फुल पैकेज ऑफ विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड B9। देखिए इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट प्लस पॉइंट है। देखिए विटामिन B3 नियासिन ये एनिमल सोर्स है, लेकिन मशरूम ये प्लांट भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, लेकिन मशरूम में ये नियासिन बहुत अच्छा अमाउंट में है। मशरूम खाने से जो वेजिटेरियन पीपल है तो नियासिन एनिमल सोर्स की जरूरत नहीं है, मशरूम खाने से आपको विटामिन B3 मिल सकता है। जैसे देखिए B9 फोलिक एसिड, कोई भी प्रेग्नेंट मैन के लिए ये जरूरत है, कोई भी अगर जो प्रेग्नेंट है उसको लिए मस्ट है, लेकिन मशरूम खाने से आपको फोलिक एसिड का जो कमी है वो दूर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए अमीनो एसिड, हमारा बॉडी के लिए 20 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए, लेकिन मशरूम खाने से हमारा 9 एसेंशियल अमीनो एसिड इजीली मिल सकता है। लेकिन इसमें देखिए दो चीज मेन है, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। वन इज सीरियल ओरिजिन एंड अनदर इज पल्स ओरिजिन। लेकिन मशरूम खाने से आपको क्या है, सीरियल्स का अमीनो एसिड भी मिल रहा और पल्सेस का अमीनो एसिड मिल रहा, मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन से बना है। मतलब एक सीरियल खाना जरूरत नहीं है अलग से, पल्सेस खाना भी जरूरत नहीं है, मशरूम खाने से आपको फुल अमीनो एसिड मिल सकता है। प्लस पॉइंट और क्या है, इसमें ये जो अमीनो एसिड है हमारा बॉडी को इम्यूनिटी देता है, जो आज का डेट में कोविड-19 में हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डाइटरी फाइबर, देखिए ये मशरूम का जो बॉडी बना है वो ऐसे एक पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स से बना है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है काइटिन और ग्लूकन। ये काइटिन और ग्लूकन हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता और ये डाइटरी फाइबर का नाम से परिचित है। डाइटरी फाइबर का काम क्या है, हमारा मोशन क्लियर करने के लिए है। आज भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए, डॉक्टर एक इसबगोल का डिब्बा दे देंगे, क्यों, वो डाइटरी फाइबर है। आपको मोशन मूवमेंट के लिए, मोशन क्लियर करने के लिए, तो मशरूम खाने के लिए आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकता है। एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत सारा एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मशरूम में मिला है। ये एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी है जो हमारा जो बच्चा, जो स्टूडेंट हॉस्टल में लॉन्ग टाइम के लिए है, उसको एक जिस टाइम सर्विस लाइफ में जाते हैं उसको एक डाइजेशन प्रॉब्लम आ जाता है और उसका रीजन है एंटीऑक्सीडेंट का कमी। तो मशरूम खाने में, मशरूम में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है, जो एंटीऑक्सीडेंट मशरूम खाने से आपको पेट भी ठीक हो सकता है। और मशरूम में 90% वाटर है। यह है एक जनरल व्यू। अभी आ रहा देखिए सिर्फ ये नहीं है, मशरूम में बहुत सारा मिनरल है, जैसे सिलेनियम। थैंक यू सर। हेलो, thank you sir. We have 5 minutes left sir, please continue. Okay, I'm going fast. Thank you sir. Okay. सिलेनियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, कोलिन है। ये एक व्यू है। देन मेडिसिन, देखिए आज का डेट में कोविड-19 में कोई मेडिसिन नहीं है, ये वायरस के लिए कोई भी मेडिसिन अभी तक डिस्कवर नहीं है। जो भी मेडिसिन डिस्कवर हुआ अभी ट्रायल में है, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड है जनवरी से पहले आएगा नहीं। तो इस कंडीशन में हमारा एक ही खाना, एक ही चीज होना चाहिए जो हम लोग वो चीज खाए जो न्यूट्रिशन भी है, मेडिसिन है। मशरूम में हम लोग पहला देखा न्यूट्रिशन एक फुल पैकेज है, इसमें बहुत सारा मेडिसिन है। इसीलिए बोल रहा मोर देन जस्ट लाइक फूड, मतलब ये सिंपल एक खाना नहीं है, एक मेडिसिन भी है। तो मेडिसिन क्या है, देखिए ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देता है, कारण कोलेस्ट्रॉल है नहीं। ये हमारा प्रोस्टेट कैंसर, हमारा जितना भयंकर प्रोस्टेट ब्रेस्ट कैंसर, ये अभी बहुत कॉमन है, इसके लिए एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। ये हमारा हड्डी बोन, इम्प्रूव द बोन हेल्थ, हमारा इसमें बहुत सारा कैल्शियम है। ये कैल्शियम हमारा बोन डेवलपमेंट के लिए फायदा करता है। और ऑस्टियोपोरोसिस, जो जॉइंट पेन होता है, इसको भी रिकवर करता है। हमारा बूस्ट इम्यूनिटी, जो कोविड-19 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए। ये रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस कर देता है। ये हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा से कर लेता है, इसीलिए हमारा एनीमिया रोग नहीं होता है, एनीमिया से हम लोग बच सकता है। ये हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है और इसी रीजन में हमारा एनीमिया से हम लोग बच सकता है। ये वेट लॉस कर सकता है,
ये हमारा डायबिटीज का इन्फेक्शन। ये और भी एक रिसेंट रिसर्च है, अगर मशरूम खाने से एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। अगर आप 40 इयर्स का है, आपको लुक लाइक 20 इयर्स से। तो ये देखिए एक हमारा एक स्टेटमेंट है, वायरल हुकर से बचने के लिए आप मशरूम खाए। देखिए मशरूम एंटी ट्यूमर, एंटी वायरल, एंटी कैंसर, वैन इम्यूनो सिस्टम, एंटी, बहुत सारा गुण मशरूम में है। दैट मीन्स मशरूम एक फुल पैकेज है मेडिसिन। आज का डेट में कोरोना पीरियड में हम लोग को मशरूम खाना चाहिए। देखिए मशरूम फॉर इनकम जनरेशन, देखिए हमारा एक स्टेटमेंट है, आर्थिक उन्नति का द्वार खोलेगा कमरा में होंगे मशरूम। मशरूम अभी ये कोरोना है, ये कोरोना आफ्टर भी कोरोना, अगर आपको खेती नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप घर में मशरूम उत्पादन करिए, आपको इनकम जनरेट करिए। और इनकम जनरेट करेंगे तो आपका फैमिली लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज कर सकता है। आप 10 आदमी को रोजगार भी दे सकता है। आप मशरूम फार्मिंग करेंगे तो 10 आदमी आपको इन्वॉल्व करके उसको रोजगारी का रास्ता दिखा सकता है। तो ये इनकम जनरेशन के लिए एक रास्ता है। ये एक सेफ्टी नेट क्यों बोल रहा है आप और किसी को? देखिए ये कोविड-19 में बहुत सारा फैक्ट्री बंद हो गया, बहुत सारा दुकान बंद हो गया। इस कंडीशन में जो डाउनफॉल चल रहा है, आप मशरूम का खेती करिए, आप जो डाउनफॉल है उससे आप रिकवरी करके आगे बढ़ सकते हैं। गैप फिलिंग, आपको फैमिली में 10 रुपया इनकम है, लेकिन आपको खर्चा हो रहा 12 रुपया, 2 रुपया जो डेफिसिट है, आप मशरूम प्रोडक्शन करके आप फैमिली को अच्छा से लाइफस्टाइल बढ़ा सकता है। एक स्टेपिंग स्टोन, एक आगे बढ़ने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन का रास्ता दिखाता है, ये है मशरूम। हाँ, एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ से मिल सकता है? स्पान प्रोडक्शन, मशरूम कल्टीवेशन, वैल्यू एडिटिव फूड प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत सारा रास्ता है मशरूम रिलेटेड इनकम जनरेशन के लिए। Thanks a lot. Thank you for your patience and listening carefully. I am thankful to organizer once again for giving me an opportunity to share my view before you. Thank you. Thank you very much, sir.